Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Welcome to this broadcast on the life of Moses. मूसा के जीवन पर आधारित इस प्रसारण में आपका स्वागत है। In the last message, I told you that each of the plagues corresponds to one of the ancient Egyptian gods. पिछले संदेश में मैंने आपको बताया था कि उन 10 महामारियों में से प्रत्येक मिस्र के प्राचीन ईश्वरों में से एक एक के साथ संबंधित थी। And today we're going to look at these. और आज हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। Let's look at the first plague. आइए पहली महामारी पर गौर करें। It was God's judgment against the waters of Egypt. ये मिस्र के जल पर परमेश्वर का दंड था। Aaron lifted his rod and smote the water, and the water turned into blood. हारून ने अपनी लाठी को उठाकर जल पर मारा और मिस्र का सारा जल लहू में बदल गया। And the fish died, and the river stank. और सब मछलियां मर गईं और नदी में से दुर्गंध आने लगी। Egypt owes its very life to the river Nile. मिस्र का जीवन नील नदी से ही चलता था। If the river Nile dries up, 99% of the population of Egypt would die within days. यदि नील नदी सूख जाती तो मिस्र की 99% आबादी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती। From the Nile came the water for irrigation. नील नदी से ही उन्हें सिंचाई के लिए पानी मिलता था। The river Nile was the primary means of transportation. नील नदी ही उनके परिवहन का मुख्य साधन थी। From the Nile came the fertile topsoil. नील नदी से ही उन्हें उत्तम उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती थी। The Nile was the key to life. नील नदी जीवन का स्रोत थी। You take it away and there will be no life. आप इसे वहां से हटा दें तो वहां कोई जीवन नहीं रहता। Osiris, or the chief gods of Egypt, ओसिरिस मिस्र का मुख्य ईश्वर, he was first and foremost the god of the Nile. वही नील नदी का प्रथम और मुख्य ईश्वर था। Offerings were made to the gods of the Nile. नील नदी के ईश्वरों को भेंटें चढ़ाई जाती थीं। Human sacrifices were offered to the gods of the Nile. नील नदी के ईश्वरों को मानव बलिदान चढ़ाए जाते थे। Priests bowed and worshipped the gods of the Nile. पुरोहित नील नदी के ईश्वरों के सामने झुकते और उनकी उपासना करते थे। And now the divine Nile, which is the source of life, became the source of death. और अब ये ईश्वरीय नील नदी जो कि जीवन का स्रोत थी, अब उनके लिए मृत्यु का स्रोत बन गई थी। And this plague lasted for 7 days. ये महामारी 7 दिन तक रही। But in Exodus chapter 7 verse 22, परंतु निर्गमन 7 अध्याय के 22 पद में लिखा है that the heart of Pharaoh was hardened, कि फिरौन का हृदय हठीला हो गया and he refused to let the people go. और उसने लोगों को जाने देने से इनकार कर दिया। So secondly comes the plague of the frogs. तो दूसरी महामारी आती है मेंढकों की महामारी। Aaron stretched his hand and millions of frogs took over the country. हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और विशाल संख्या में मेंढक देश पर छा गए। Ancient Egyptians worshipped the goddess Heket. प्राचीन मिस्री हेकेत देवी की उपासना करते थे। Heket was always pictured with a normal head and a body of a frog. हेकेत की छवि में हमेशा उसका सिर सामान्य था लेकिन देह मेंढक की थी। Heket the frog was considered to be the goddess of fertility. हेकेत मेंढक देवी को उर्वरता की देवी माना जाता था। God gave them frogs until frogs were literally coming out of their ears. परमेश्वर तब तक उन पर मेंढक भेजता गया जब तक कि मेंढक उनके कानों से बाहर ना आने लगे। They baked their bread with frogs in it. वो रोटी पकाते तो उसमें मेंढक, They drank their water with frogs in it. उन्हें मेंढकों वाला पानी पीना पड़ा। They slept in beds that were covered with frogs. मेंढकों से भरे बिस्तर पर उन्हें सोना पड़ा। Here is the irony. व्यंग्यात्मक बात यह है Ancient Egyptians could not kill frogs. कि प्राचीन मिस्री मेंढकों को मार भी नहीं सकते थे, For how can they kill the goddess of fertility? क्योंकि वो उर्वरता की देवी को कैसे मार सकते थे। But here is something really funny. परंतु सबसे हास्यास्पद बात यह है Pharaoh turns to his magicians and asks them, "Can you do this?" कि फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? Oh yes, they said, they can make more frogs. जी हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, वो और अधिक मेंढक ला सकते थे। But one thing they did not need was more frogs. परंतु एक बात जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे वो थी और मेंढक। But the magicians could not get rid of the frogs. परंतु वो जादूगर मेंढकों से पीछा न छुड़ा सके। Only God can. केवल परमेश्वर ऐसा कर सकता है। In Exodus 8:8, Pharaoh said to Moses, निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय के 8 पद में फिरौन मूसा से कहता है, "Entreat your God to get rid of the frogs, and I will let you go." अपने परमेश्वर से विनती करो कि वो इन मेंढकों से हमारा पीछा छुड़ाए और मैं तुमको जाने दूंगा। But when God answered the request, परंतु जब परमेश्वर ने उनकी विनती का उत्तर दे दिया Pharaoh refused to let them go. तो फिरौन ने
ने उन्हें जाने देने से फिर इनकार कर दिया। So came the third plague of the flies or the lice. तो फिर कुटुक्कियों की तीसरी महामारी आ पहुंची। The Bible indicates that this was a form of sandfly that dug deep beneath the skin and caused itching and pain. बाइबल संकेत देती है कि ये कुटुक्कियां रेतीली मक्खी का ही एक रूप थी जो त्वचा के अंदर घुसकर खुजली और पीड़ा उत्पन्न करती थी। This was a judgment upon the earth god Gib. ये धरती के देवता जिब पर परमेश्वर का दंड था। The fertile land of Egypt that was worshipped was now producing insects and swarms of flies. उनकी मिस्र की उपजाऊ धरती जिसकी वो उपासना करते थे वो अब कीड़े मकोड़े और मक्खियों के दल पैदा कर रही थी। And this defiled their bodies and prevented the priests from practicing their pagan rituals. इससे उनके शरीर दूषित हो गए और पुरोहित अपने विधर्मी अनुष्ठान नहीं कर पाते थे। Still, Pharaoh refused to let them go. तो भी फिरौन ने उन्हें जाने देने से इनकार किया। So comes the fourth plague. इसलिए चौथी महामारी आ पहुंची। This plague is another insect that was very special to the Egyptians in their worship. ये महामारी एक और ऐसे कीड़े की महामारी थी जिसका मिस्रियों की उपासना में बहुत खास स्थान था। The ancient Egyptians worshipped the beetle. प्राचीन मिस्री डांसों की उपासना करते थे। And God said, I'll give you enough beetle to make you sick. और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें इतने डांस दूंगा कि तुम उनसे दुखी हो जाओगे। But when they got over the supply of beetles, still Pharaoh refused to surrender. परंतु जब उनका डांसों से पीछा छूटा तो फिरौन ने फिर समर्पण करने से इनकार कर दिया। Which brought about the fifth plague. जो कि पांचवी महामारी का कारण बना। This was against the cattle of the land. ये महामारी देश के पशुओं पर पड़ी। Ancient Egyptians venerated animals. प्राचीन मिस्री पशुओं में श्रद्धा रखते थे। One of the most popular religious cults was the cult of Apis, the bull god. उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध धार्मिक प्रथाओं में से एक थी एपिस की प्रथा, सांड ईश्वर। In many shrines you would find a sacred bull. वहाँ बहुत सारे मकबरों में आप पवित्र सांड को देख सकते हैं। In fact, dead bulls were given elaborate burials in a vault at Sagara near Memphis. बल्कि मम्फस के निकट सगारा नामक स्थान पर सांडों को बड़ी विस्तृत रीति से शव कक्ष बनाकर दफनाया जाता था। Many of the people of God in Egypt belonged to that cult. मिस्र में इस प्रथा के साथ परमेश्वर के भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। And that is why when Moses went up to the mountains in Sinai desert, और इसी कारण जब उजाड़ में मूसा सीनाई पहाड़ पर गया, and most of his people thought he would never come back, और उसके लोगों में से बहुतों ने सोचा कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा, so they asked Aaron to make a golden calf in the image of Apis. तो उन्होंने हारून से कहा कि वो एपिस देवता के स्वरूप में उनके लिए सोने का एक बछड़ा बना दे। They said, "This is your God, O Israel, who brought you out of Egypt." उन्होंने कहा, हे इज़राइल, ये है तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र से निकाल कर ले आया है। It's against this depraved religious system that God's judgment came. परमेश्वर का ये दंड इस चरित्रहीन धार्मिक प्रणाली पर पड़ा। Still, Pharaoh's heart was hardened. तो भी फिरौन का हृदय कठोर ही रहा। Which brings us to the sixth plague. जो हमें छठी महामारी पर ले आता है। The sixth plague was the plague of boils and ulcers. सातवीं महामारी फफोलों और फोड़ों की महामारी थी। Exodus chapter 9 verses 10 to 12 tells us निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय के 10 से 12 पद हमें बताते हैं that Moses and Aaron took ashes of a furnace and stood before Pharaoh. कि मूसा और हारून ने भट्टी में से राख ली और फिरौन के सामने जा खड़े हुए। They sprinkled the ashes toward heaven and they became boils. उन्होंने उस राख को आकाश की ओर उड़ाया और वो फफोले बन गई। Nothing would cure these boils in the skin of ancient Egyptians. प्राचीन मिस्रियों की चमड़ी पर निकल आए इन फफोलों और फोड़ों की कोई दवा नहीं थी। Boils covered their faces and their whole bodies. उनके पूरे चेहरे और शरीर इन फफोलों और फोड़ों से भर गए। So much so that the magicians could not appear before Moses because of the boils. ये इतना अधिक था कि इन फफोलों के कारण जादूगर मूसा के सामने न आ सके। The irony is this. व्यंग्यात्मक तथ्य ये है, It was customary in ancient Egypt for the ashes of sacrifices to be sprinkled into the air above the worshipper. उस समय प्राचीन मिस्र में ये प्रथा थी कि बलि की राख को उपासना करने वाले लोगों के ऊपर हवा में छिड़का जाता था। And all who have ashes fall upon them counted that a blessing. और वो सब जिन पर ये राख गिरती वो इसे एक आशीष मानते। But now, in the hands of Moses, the ashes of blessings have become the ashes of a curse. परंतु अब मूसा के हाथों में आकर वो आशीषों की राख अब श्राप की राख में बदल गई थी।
Egyptians and Egyptian gods were known for being skilled in medicine. मिस्री लोग और मिस्री देवता चिकित्सा में कुशलता के लिए जाने जाते थे, But these gods are impotent before Jehovah God. परंतु ये ईश्वर यहोवा परमेश्वर के सामने बेबस थे। But Pharaoh still hardened his heart. परंतु फिरौन ने फिर भी अपने हृदय को कठोर रखा। Which brings me to the seventh plague, which was an extraordinary phenomenon. जो मुझे 7वीं महामारी पर ले आता है, जो कि एक असाधारण और अद्भुत घटना थी। It rarely rains in Egypt. मिस्र में बारिश कभी कभार ही होती है, So to get lightning and hail sends horror in the hearts of both people and beasts. और इसलिए बिजली चमकना और ओले गिरना वहाँ मनुष्य और जानवर दोनों के हृदयों में भय को भर देता है। With this plague comes a turning of people against Pharaoh. इस महामारी के आने के साथ ही लोग भी फिरौन के विरुद्ध हो गए। Moses warned the people that every animal left in the field will be killed by the hail. मूसा ने लोगों को चेतावनी दी थी कि मैदान में छोड़ा गया हर पशु इन ओलों से मारा जाएगा। But those who believed the words of the Lord, even among the Egyptians, their animals would survive. परंतु जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, चाहे वो मिस्रियों में से भी थे, उनके पशु बच गए। But those who had faith in the sky gods, they were devastated. परंतु वो जिनका विश्वास आकाश के ईश्वरों पर था, वो बर्बाद हो गए। And when hope is shattered and expectations are not met, anger would follow. और जब आशा टूटकर बिखर जाती है और उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो क्रोध आने लगता है। Horus, the god of the atmosphere, होरस वायुमंडल का देवता and Nut, the sky goddess, और नुत आकाश की देवी proved ineffective in the face of the power of Jehovah. दोनों यहोवा परमेश्वर की शक्ति के सामने प्रभावहीन साबित हुए। Then comes the eighth plague, the invasion of the locusts. फिर 8वीं महामारी आती है, टिड्डियों का आक्रमण। The locusts devoured everything left in the field after the devastation caused by hail. ओलों के कारण हुई तबाही के बाद जो कुछ खेतों में बचा था, वो सब ये टिड्डियां चट कर गईं। In Exodus chapter 10 and verse 7, निर्गमन 10 अध्याय के 7 पद में the country's leaders pleaded with Pharaoh to let the Hebrews go. देश के अधिकारियों ने फिरौन से विनती की कि वो इब्रानियों को जाने दे। But when Pharaoh attempted to bargain with Moses, he discovered that God does not bargain. परंतु जब फिरौन ने मूसा के साथ सौदेबाजी करने का प्रयत्न किया, तो उसने पाया कि परमेश्वर सौदेबाजी नहीं करता। Moses left the palace while the locusts consumed everything in sight. मूसा वहां से चला गया, जबकि टिड्डियों ने जो कुछ भी सामने आया उसे चट कर लिया। Nepri, the god of the grains. नप्रा अनाज का देवता, Anubis, the guardian god of the fields. अनिबस मैदान का रक्षक देवता, Min, the deity of the harvest and crops. मिन कटनी और फसल का ईश्वर। All these gods had now joined the list of false gods that were defeated and destroyed by Yahweh. ये सब ईश्वर उन झूठे ईश्वरों की सूची में शामिल हो गए जिनको यहोवा परमेश्वर ने पराजित और नाश कर दिया था। Finally, the ninth plague comes swiftly and unexpectedly. अंत में 9वीं महामारी अचानक और तेजी से आन पड़ती है। And this was the most significant of all in terms of the Egyptian false gods. और झूठे मिस्री ईश्वरों के नजरिए से ये सबसे महत्वपूर्ण महामारी थी। For 3 days, a dense darkness fell upon the land. 3 दिन तक देश पर गहरा अंधकार छाया रहा। The stars were gone and the moon did not shine. तारे जाते रहे और चांद ने भी अपनी ज्योति न दी। And in Exodus chapter 10 verses 21 to 23, और निर्गमन 10 अध्याय के 21 से 23 पदों में we read of the most devastating plague of all, the disappearance of Ra. हम सबसे विनाशकारी महामारी के बारे में पढ़ते हैं, रा देवता का गायब हो जाना। Ra, the beloved sun god, had been obliterated. रा जो कि उनका प्यारा सूर्य का देवता था, उसको ढक दिया गया था। The noon hour was blacker than midnight. दोपहर का समय आधी रात से भी अधिक अंधकारपूर्ण था। The people were forced to sit still for 3 days. लोग 3 दिन तक जड़ होकर बैठने के लिए मजबूर हो गए। They could not move. वो हिल तक नहीं सके, They could not eat. वो खाना नहीं खा सके, They could not see each other. वो एक दूसरे को देख नहीं पाए। And Pharaoh the sun worshipper discovered that the sun is no match for the sun maker. और फिरौन जो कि सूर्य का उपासक था, उसने पाया कि सूर्य को रचने वाले के साथ कोई मुकाबला नहीं है। Finally, Pharaoh said to Moses, आखिर फिरौन ने मूसा से कहा,
Get out of here. If you see my face again, you'll be a dead man. यहाँ से निकल जा, यदि दोबारा तू मेरे सामने आए तो तू मारा जाएगा। Exodus chapter 10 verse 29, Moses said, निर्गमन 10 अध्याय के 29 पद में मूसा ने उत्तर दिया, You said it well, I will not see your face again. तूने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा। First it was the river, सबसे पहले नदी, then the land, फिर धरती, then finally the sky. और अंत में आकाश। Again and again, God reminded them that He is the maker of all things. बार बार परमेश्वर ने उन्हें याद दिलाया कि वही सृष्टि करता है, And He is the one to be worshipped and adored. और केवल उसी को आदर मिलना और उसी की उपासना होनी चाहिए, Not His creation, न कि उसकी सृष्टि की, not His blessings, न कि उसकी आशीषों की, not His gifts. न कि उसके वरदानों की। My listening friends, please listen carefully to what I'm going to tell you. मेरे श्रोता मित्र, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कृपया से बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। There are two lessons here that I pray that will be imprinted indelibly upon your heart. यहाँ पर दो सबक हैं जो मेरी प्रार्थना है कि आपके हृदय पर स्थायी रूप से छप जाएं। First of all, सबसे पहले, God detests cheap repentance. परमेश्वर घटिया पश्चाताप से घृणा करता है। God detests temporary change of heart. परमेश्वर हृदय के अस्थायी परिवर्तन से घृणा करता है। God detests transitory change of character. परमेश्वर चरित्र के अल्पकालिक बदलाव से घृणा करता है। After each plague, from the frogs to the darkness, Pharaoh promised to repent. मेंढकों से लेकर अंधकार तक हर महामारी के बाद फिरौन पश्चाताप करने का वादा करता रहा। And yet, as soon as God answered Moses' prayer, Pharaoh went back to his old ways. और जैसे ही परमेश्वर मूसा की प्रार्थना का उत्तर देता, फिरौन अपनी पुरानी चाल चलने लगता। True repentance is not just out of fear of the consequences of sin. सच्चा पश्चाताप केवल पाप के परिणामों के भय के कारण नहीं किया जाता। It is out of love for the one who has been offended. ये उसके प्रति प्रेम के कारण किया जाता है जिसे दोषी ठहराया गया। So much of our repentance is like that of Pharaoh. हमारा अधिकतर पश्चाताप फिरौन के पश्चाताप जैसा ही होता है। We only do it when we want something from God. हम पश्चाताप केवल तभी करते हैं जब हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए होता है। So many of our cries to God are like that of Pharaoh's. परमेश्वर के सामने हमारा चिल्लाना अधिकतर फिरौन के चिल्लाने की तरह ही होता है। Get me out of this and I'll be good. मुझे इस मुसीबत से निकाल और आगे से मैं सही चाल चलूंगा। Bless me and I'll change my ways. मुझे आशीष दे और मैं अपने रास्ते बदल दूंगा। Do this and I'll do that. तू ऐसा कर दे और मैं वैसा करूंगा। This is a very dangerous thing to do. ये बहुत खतरनाक बात है। When you are truly in love with God, you want to please Him. जब आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसे खुश करना चाहते हैं। And when you become aware that you have offended Him and displeased Him, you grieve over offending Him. और जब आपको इस बात का पता चलता है कि आपने उसे ठेस पहुंचाई है और उसे नाराज कर दिया है, तो आप उसे ठेस पहुंचाने के कारण दुखी अनुभव करते हैं। The second thing I want to tell you is this. दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, Moses was given a variety of options, मूसा को अलग अलग विकल्प दिए गए थे, but he insisted on what God wanted instead of what he could have settled for. परंतु बजाय अपने चुनाव के उसने इस बात को थामे रखा जो परमेश्वर चाहता था। It is a well-known fact in negotiation संधिवार्ता में ये बहुत जाना पहचाना तथ्य है that you start by asking for the whole loaf. कि आप पूरा हिस्सा मांगते हुए शुरू करें। So at the end of the day, you will settle for the half, which really what you wanted to begin with. ताकि अंत में आप आधे पर मान जाएं जो असल में वही है जहां से आप शुरू करना चाहते थे। This may be okay in negotiation, संधिवार्ता में ये सही हो सकता है, but negotiation is not part of God's vocabulary. परंतु संधिवार्ता परमेश्वर की शब्दावली का हिस्सा नहीं है। In Exodus chapter 8 verse 25, Pharaoh said, "Sacrifice to your God here in Egypt." निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय के 25 पद में फिरौन कहता है, तुम अपने परमेश्वर को यहीं मिस्र में ही बलिदान चढ़ाओ। But Moses said, परंतु मूसा ने उत्तर दिया, God said to go for 3 days and 3 nights journey, and there we sacrifice. परमेश्वर ने कहा है कि हम 3 दिन और 3 रात की यात्रा करें और वहां हम उसे बलिदान चढ़ाएं। In Exodus 8:28, Pharaoh answered, निर्गमन 8 अध्याय के 28 पद में फिरौन ने उत्तर दिया, Go, but not too far. जाओ पर ज्यादा दूर मत जाना। But Moses remembered God's instructions, परंतु मूसा को परमेश्वर के निर्देश याद थे and he told Pharaoh, No,
3 days and 3 nights. That's what God said. और उसने फिरौन से कहा, नहीं, हमें 3 दिन और 3 रातें चाहिए, यही परमेश्वर ने कहा है। No bargaining. कोई सौदेबाजी नहीं। My listening friends, listen carefully as we are getting ready to conclude. मेरे श्रोता मित्र, हम समाप्त करने वाले हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। Negotiation with God is an indication of a hard heart. परमेश्वर के साथ सौदेबाजी एक कठोर हृदय की निशानी है। And that is why Pharaoh's heart was hardened. और इसी कारण फिरौन का हृदय कठोर हो गया था। We read that God hardened Pharaoh's heart. हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर किया। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? As if God is saying, you worship frogs, here are more frogs you worship. जैसे परमेश्वर कह रहा हो, तुम मेंढकों की उपासना करते हो, लो और मेंढक लो जिनके तुम उपासक हो। In the same way, God would say to each of us, इसी रीति से परमेश्वर हम में से प्रत्येक से कहेगा, you have decided to renege on your promises. तुमने अपने वादों से फिरने का फैसला कर लिया है। You decided to ignore my commands. तुमने मेरी आज्ञाओं को अनदेखा करने का फैसला कर लिया है। You decided to be in control of your life. तुमने अपने जीवन का नियंत्रण खुद करने का फैसला कर लिया है। You have decided to do things your way. तुमने अपने तरीके से सब काम करने का फैसला कर लिया है। And I'll now help you fulfill your desire. और अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी मदद करूंगा। I'll give you what you want in abundance. मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम भरपूरी से चाहते हो। Be careful, my listening friends, in the area of your obedience to God. मेरे श्रोता मित्रों, परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता के क्षेत्र में सावधान रहिए। A smorgasbord obedience or temporary obedience will not honor God. एक अल्पकालिक या अस्थायी आज्ञाकारिता से परमेश्वर को आदर नहीं मिलता। That is why Paul tells us in Romans 2:4, इसी कारण रोमियो की पत्री 2 अध्याय के 4 पद में पौलुस हमसे कहता है, do not take God's mercy for granted. परमेश्वर की दया को हल्का न जानो। Do not let God's patience with you send you to an ego trip of thinking that you can get away with things. आपके प्रति परमेश्वर का धैर्य आपको इस सोच की अहम भाव यात्रा पर न ले जाए कि आप गलती करके बच निकलेंगे। No one can get away from God. परमेश्वर से कोई नहीं बच सकता। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।